பரிசுத்தத்தில் காத்துக்கொள்ள எங்களை தானே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அப்பா. तेरी हजूरी में जितने भी हम भाई बहन हैं, हम सबको पाकीज़गी में आगे बढ़ाने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। இந்த பரிசுத்த வார்த்தை எங்களுக்குள் வந்து சுத்திகரிக்க எங்களை ஆளுகை செய்ய போகிறோம். कलाम के साथ तू हम सब की ज़िंदगियों को तू बदलने वाला है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। இந்த நாளில் பரலோகத்திலிருந்து நீர் எங்களுக்கு என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீரோ அவைகளை செயல்பட நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். और इस धन्य दिन में हम अपने आप को सौंपते हैं कि जो तेरी इच्छा है हम सब के लिए वही पूरी हो। எங்களை முற்றிலும் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே. तू हमारे साथ बात कर और हम सुने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்குள் நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். हम सब मसीह में खुश हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நமக்குள் எவ்வளவு கவலை இருந்தாலும் கஷ்டம் இருந்தாலும் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். जितना चाहे हम दुख उठा लें, बट मसीह में हम सब खुश हैं। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏன் இயேசு நமக்காக பூமியில வந்து அவர் மரிக்க வேண்டும்? यीशु दुनिया में क्यों आया था और हमारे लिए उसने अपनी जान क्यों दी? உங்களையும் என்னையும் உருவாக்கின ஜீவனுள்ள தேவன் ஏன் அவர் மாமிசமாக வெளிப்பட்டு ஏன் மரிக்க வேண்டும்? हम सबको रचाने वाला पिता परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा? அதுவும் கொடூரமான சித்திரவதைப்பட்டு அவமானப்பட்டு சதையெல்லாம் பிக்கப்பட்டு ரத்தங்கள் சொட்ட தன்னை ஒப்பு கொடுக்க ஏன் அவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட வேண்டும்? और इतने बेरहमी से उसको क्यों मार दिया गया? हमारे लिए एक एक लहू, उसका पूरा एक एक बूंद उसने हमारे लिए दे दी। அதுவும் கடைசி மரணத்தில் நிர்வாணமாக 3 ஆண்டுகளாக பல மணி நேரம் கொடூரமாக கஷ்டப்பட்டு ஏன் சாக வேண்டும்? और हम देखते हैं जो अंतिम के कुछ घंटे थे, काफ़ी तकलीफ उठाई है उसने। और क्यों तकलीफ उठाई हमारे लिए? காரணம் நம்மை ரட்சிப்பதற்கு. क्योंकि वो चाहता है कि हम भी उसके साथ रहें, நம் பாவங்களை சுத்திகரிப்பதற்கு. ताकि हम गुनाहों से छुटकारा पाएं। அவர் நமக்காக எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்து விட்டார். और यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார். उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। அவர் நாம் ஐஸ்வர்யராகும்படி அவர் தரித்திரராகி எல்லாவற்றையும் நமக்கு கொடுத்து விட்டார். हम सबको आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने आप को खाली किया है, நாம் சுதந்திரவாளிகளாக இருக்கிறோம். ताकि हमें आज़ादी मिले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் நாம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோமா? बट क्या वाकई में आप कह सकते हो कि आज़ादी है हमारी ज़िंदगी में? ஹல்லேலூயா. இன்னும் நிறைய கவலைகள் கண்ணீர்கள் கேள்விகள் யோசனைகள் தான் நம்ம இடத்துல இருக்கு. आज भी हम दुख उठाते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, तकलीफ में हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மற்றவர்களைப் போல தான் நாமும் இருக்கிறோம். हम भी दूसरे लोगों की तरह ही हैं। அவர்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு வித்தியாசம், நம்ம கையில் பைபிள் இருக்கிறது, அவங்க கையில் ஒண்ணும் இல்லை. और दुनियावी लोग और हमारे बीच में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि हमारे हाथ में बाइबल है। நாம் மற்றவர்களுக்கு தைரியப்படுத்தி சொல்லுவோம். और हम दूसरों को कहते हैं नहीं, आप सब्र रखो, कोई नहीं। ஆனால் நாம் பயந்து கொண்டிருப்போம். पर हम खुद डरते हैं। கர்த்தர் சொல்றார் உனக்கு நன்மையா நடக்கும் என்று சொல்லுவோம். बट खुदा कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ஆனால் நாம் ஊழியக்காரன் தலையெடுத்து ஆண்டவரே ஊழியக்காரே எனக்கு ஜெபியுங்கள், எனக்கு காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்றோம். पर हम खादिमों के पास जाते हैं और कहते हैं आप आपका हाथ रख के मेरे लिए दुआ करें। ஹல்லேலூயா. இதுதான் அன்றும் சீஷர்களிடத்திலும் இயேசு இருக்கும்போது சீஷர்கள் அதைத்தான் செய்தார்கள். इसी बातों को हम अगर पढ़ के देखें तो शागिर्दों ने उन दिनों में यीशु के साथ यही किया था। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? हम क्या कर रहे हैं? நம்ம இடத்துல இயேசு இருக்கிறார் இல்லையா? क्या हमारे पास यीशु है? ஆவியானவர் இருக்கார் இல்லையா? पाखरू है। வல்லமையுள்ள தேவன் நமக்குள் இருக்கிறார். और पिता परमेश्वर खुद हमारे साथ है। நமக்குள் இருக்கிற ஜீவன தேவன் இருக்கிறார். तो हमारे अंदर जो खुदा है वो जिंदा खुदा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? तो हमें क्या करना चाहिए? அவரை போல மாறுவதற்காக தான் சபையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். हमें उसके जैसे बनाने के लिए खुदा ने हमारे लिए कलीसिया दी है। அந்த சபை என்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் அறிகிற அறிவில் வளர்வதற்காக। और कलीसिया इसलिए दिया गया है कि हम खुदा में, हमारे अकल में भी खुदा के साथ आगे बढ़े। அந்த அறிவை கற்றுக் கொடுப்பவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். और इन बातों को जो हमें सिखाता है वो पाखरू है। அது வளர வளர நாம் பரிபூர்ணமாகும். और जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना परिपूर्णता की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। நாம் தாயின் கருவில் இருப்பதை போல நம்ம சபைக்குள் இருக்கிறோம். जैसे हम माँ के कोख में थे वैसे ही हम कलीसिया के अंदर हैं। தாய் உணர்வு நம்ம உணவானது எப்படி குழந்தையை போஷித்து பெரிய ஆளாக்குதோ அதே மாதிரி ஆவியானவர் நம்ம ஆக்கி கொண்டிருக்கிற சபைக்குள்ளாக। जैसे एक माँ एक बच्चे को पाल पोस के अपने कोख में बड़ा करती हैं, वैसे ही कलीसिया के अंदर हम बैठकर खुदा की तरफ से हमें जो मिलता है उसको निकाल के हम बड़ा होते हैं। குழந்தையானது தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளியே வரும்போது அது தானாக தன்னுடைய வேலையை செய்யும். तो हम देखते हैं जब बच्चा बड़ा हो गया है तो कोख से बाहर निकल के खुद चलना सीखना वो सीख जाता है। தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் வரை தாயின் உணவும்
पर हम देखते हैं कि जब माँ के कोख में है तो जब तक वो अंदर है तब तक माँ के ऊपर वो डिपेंड करता है। ஆனால் 10 மாதம் பிறகு அந்த குழந்தை தானாக வளரத் தொடங்கியது வெளியே. पर 10 महीना पूरा होने के बाद हम देखते हैं बच्चा खुद बहुत बाहर निकलता है। ஹalleluya. அதே போல தான் நம் சபையில் இன்று ஆவியானவர் நம்மை பூரண புருஷராக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். वैसे ही पाकरू आज हम सबको उसी परिपूर्णता की तरफ, उसी बदलाव की तरफ लेके जा रहा है। அப்ப தாய் தன்னுடைய உணவை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கும்போது, வயிற்றுல பிள்ளை கொடுக்கும்போது அந்த பிள்ளையும் தன்னுடைய காரியங்களை செயல்படுத்த வேண்டும், அதனுடைய காரியம் செயல்பட வேண்டும். तो हम देखते हैं माँ जब कोख में बच्चा को बड़ा कर रही है तो खुद भी बढ़ रही है और बच्चे को भी बढ़ा रही है। वैसे ही कलीसिया भी हमको ऐसे ही आगे बढ़ाता है। ஆனால் அந்த குழந்தையானது சரியான அந்த காரியங்கள் செயல்படாவிட்டால் ஏதோ ஒரு பலவீனமான உடலில் உள்ள கூறுகள் குறையப்படும். और हम देखते हैं अगर कोख में बच्चा ठीक तरीके से बड़ा नहीं हो रहा है तो शायद कुछ कमी होगी उसमें। அதே போல தான் நாம் சபைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். वैसे ही हम भी कलीसिया के अंदर आए हैं சபையில் அறிவில் நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். और कलीसिया में यीशु के बारे में और जानने के लिए आके बैठे हैं நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். और हमें बल मिलती है खुदा की तरफ से। ஆனால் நாம் பூரண புருஷராக மாறி இருக்கிறோம். पर हम क्या परिपूर्णता की तरफ आगे बढ़े हैं? தேவன் இயேசு நினைத்ததை போல நாம் மாறி இருக்கிறோம். जैसा यीशु चाहता है, क्या वाकई में बदलाव हमारे अंदर उस हद तक है? ஹalleluya. நாம் ஏதோ ஒரு சபையில் இல்லை, சீஷர்களை உருவாக்குற சபையில் நாம் இருக்கிறோம். हम कोई कलीसिया में नहीं बट शागिर्दों की कलीसिया में हैं। சீஷர்கள் உருவாக்குற சபை என்பது அது வித்தியாசமான சபை அல்ல. அவர்கள் எழுந்து பலனடைந்து மற்றவர்களை பலப்படுத்துவதும் சீஷர்கள். और जो शागिर्दों की कलीसिया है वो दूसरों को ऐसे ही नहीं लेके आते हैं, दूसरों को शागिर्द बनाते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। நான் நினைக்கிறேன் என்ஜேசி சபையானது ட்ராக்ஸ் கொடுத்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற சபையாக தான் எனக்குள் தெரியும். बट मैं देखता हूँ कि एनजेसी कलीसिया जो है दूसरों को ट्रैक्स देकर सिर्फ सुसमाचार सुना रही है। நல்லவர் சொல்லி பேசி यीशु अच्छा है, भला है, ऐसा बात करते हैं। அந்த விசுவாசமானது எவ்வளவு தூரம் நமக்குள் கிரியை செய்கிறது. पर वो विश्वास वाकई में कितने लोगों के अंदर काम कर रही है? என்னை அந்த விசுவாசமானது பலப்படுத்துகிறதா? क्या वो विश्वास वाकई में ईमान में आगे बढ़ने की मेरी मदद करती है? எனக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் என் குடும்பத்தை பலப்படுத்துகிறது. क्या मेरी विश्वास मेरी परिवार में नजर आ रही है? எனக்குள்ள இருக்க விசுவாசம் என் சபையில் உள்ள சகோதர சகோதரிகளை பலப்படுத்துகிறது. क्या मेरे अंदर जो विश्वास है कलीसिया में जो भाई बहन है उनके लिए काम आ रही है? இவைகள் ஒன்றும் இல்லாவிட்டால் நாம் பேசுவது வெண்கல பாத்திரத்தில் வர சத்தம் போலத்தான். और अगर हम देखते हैं इनमें से अगर एक भी बात हमारे अंदर नहीं है तो हम एक खाली बर्तन की तरह हैं। ஹalleluya. பாருங்கள் வாசிப்போம் சங்கீதம். हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता, நீதிமொழி, नीति वचन प्रोवर्ब्स, மூன்றாவது அதிகாரம் 3 चैप्टर 5, 6, 7, 5 से लेकर 8 तक। 5 to 8. नीति वचन 3 उसका 5 से लेकर 8 तक। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। 5வது வசனம் எப்படி சொல்கிறது? உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இதயத்தோடு கர்த்தரில் நம்பிக்கை. 5वां वचन में हमने अभी पढ़ा है कि हमें खुद अपने अकल को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए पर पूरी तरीके से खुदा के ऊपर भरोसा रखना है। சுய புத்தி என்பது என் சிந்தனையை தான் சொல்கிறது. खुद के सोच क्या है? என் சிந்தனையை சார்ந்து நான் நிற்காமல் जो मैं खुद के सोचों को लेकर मैं फैसला लेता हूँ ये है, इनको छोड़ना है। இருதயத்தை சார்ந்து இருக்கும்படியாக ஆவியானவர் சொல்கிறார். पर पाकरू कहता है कि दिल में जो मैं दोहरा रहा हूँ उन चीजों पर ध्यान दे। இன்று வரை அந்த இருதயமானது என்னவென்றால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆத்மாவுடைய நிலமாக இருக்கிறது. हम देखते हैं कि हमारा दिल जो है हमारे रूह और पाकरू के लिए वो एक घर जैसा है। இன்று நிறைய செய்திகளும் வேத வாக்கியங்களும் பாஸ்டர் கொடுக்கிற வார்த்தை எல்லாம் எங்க போய்கிறதா? நம்ம சிந்தனைக்கு போகிறது. हम देखते हैं आजकल का जो कलाम हम सुनते हैं काफी देर तक तो हमारे सिर्फ दिमाग में रह जाती है। அந்த சுய புத்திக்கு போகும்போது அவைகள் பார்ப்பதற்கு கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். तो हम देखते हैं जब कलाम सुनते हैं तो सोचने के लिए और समझने के लिए अच्छा लगता है நேரத்துக்கு நன்றாக இருக்கும். और उस समय में वो अच्छा लगता है। 2 நாள் 3 நாள் பிறகு அது சோர்ந்து போய்கிறது. 2-3 दिन बाद हम देखते हैं कि उस बात को भूल जाते हैं। பாஸ்டர் சொல்கிறார் உண்மைதான். पास्टर साहब वाकई में कलाम सुना रहे हैं என்னால் முடியாது. पर मुझसे नहीं होगा। அவர் பலப்படுகிறார், என்னால முடியாது. उनको ताकत मिल रही है बट मुझे नहीं मिलेगा। வேதம் சொல்கிறது எல்லாரும் முடியும். वचन में लिखा है कि सबको मिल सकता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன் பாஸ்டரால முடியுது, ஏன் மோசேவால முடியுது, ஏன் பவுலால முடியுது, ஏன் என்னால முடியாது? क्यों पास्टर साहब के लिए मुमकिन है, क्यों मूसा के लिए मुमकिन था, क्यों पौलुस के लिए मुमकिन था बट मेरे लिए नामुमकिन है? ஏன்? क्यों?
அவைகள் நம் சுய புத்தியில் இருப்பதனால் முடியவில்லை, அவர்களுக்கு இருதயத்தில் இருப்பதனால் அவர்களுக்கு முடிகிறது. क्योंकि हम हमारे अक्ल को इस्तेमाल करके सोचते हैं, बट उनके लिए कलाम दिल में बसा हुआ है, इसलिए वो कर पाते हैं. 8வது வசனத்தை வாசிப்போம். 8वें वचन को हम पढ़ के देखेंगे. அது உன் நாபிக்கு ஆரோக்கியமும் உன் எலும்புக்கு ஊனமாக இருக்கிறது. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. வார்த்தை, ஜீவனுள்ள வார்த்தை என் இருதயத்தில் புறப்படுமானால் அது முதல் சுகம் கொடுக்கிறது. अगर वाकई में जिंदा कलाम आपके दिल में फंसा हुआ है तो आपकी जिंदगी में पहले छुटकारा मिलेगी और मुझे वाकई में खुशी मिलेगी और मुझे और ताकत मिलेगी, வார்த்தை உண்மை சொல்கிறது. வார்த்தை क्योंकि कलाम में जो लिखा है वो सच है. என் இருதயத்திலிருந்து அந்த வார்த்தையானது புறப்படுமானால் அது முதல் செய்கிறது எனக்கு சமாதானம், சந்தோஷம், சுகத்தை கொடுக்கிறது. अगर वाकई में ये सच्चा कलाम, जिंदा कलाम मेरे दिल से निकले तो वाकई में वो हर एक वचन जो है मेरी जिंदगी में जाहिर होगा. हालेलुया. நாம் சிந்திக்கும்படியாகத்தான் அவர் நம்மோடு பேசுகிறார். मैं सिर्फ सोचने के लिए पाखरू जो दोहरा रहा है वो बात कर रहा हूँ. நாம் ஒவ்வொருவரும் எழுந்திருக்க வேண்டும். हम में से हर एक को उठना है खुदा के लिए. ஆவியானவர் நம்மோடு பேசி நம்ம செயல்படுவதாக மாற வேண்டும். हमें पाखरू की आवाज़ सुनने की आदत डालनी चाहिए, சமீபமாக இருக்கு. क्योंकि यीशु के आने का वक्त बहुत निकट है. நாம் சொல்லிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம். हम बात कर रहे हैं हर दिन, யோபா சொன்னதை போல தான் சொல்லிக்கொண்டு. जैसे नूह के दिनों में हमने बात की, சடுதியில் மழை வந்ததை போல पर जैसे अचानक बारिश आई இந்த சடுதியில் இயேசுவின் வருகை இருக்கும்போது और यीशु भी अचानक आएगा. அந்த பிழைக்கப்பட்டது ஒரே குடும்பம் தான். और उन दिनों में हमने देखा है कि एक ही परिवार बची, தேவன் சத்தத்தை கேட்டவர். क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज़ सुनी. தேவன் சத்தத்தை நாம் கேட்போமா? तो अगर हम खुदा की आवाज़ को सुने, நாம் நோவா பிழைக்கு போனதை போல நாம் இயேசுவை பிழைப்போம். जैसे नूह उस दिन अपने पूरे परिवार को बचा पाया था, वैसे ही हम भी बचेंगे. இயேசுவின் பிழை என்பது அந்த வசனத்தை நான் தியானித்து செயல்படும்போது அது என்னை காப்பாற்றும். तो हम देखते हैं जैसे नूह उन दिनों में खुदा की आवाज़ सुनकर पूरी परिवार के लिए नजात लेके आया था, वैसे ही जब हम यीशु के सोचों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो वाकई में हम भी बच जाएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் இன்னும் பாவத்தை குறித்து, வேதனை குறித்து, விடுதலை குறித்து நாம் பேசிக்கொண்ட காலம் அல்ல இது. हमें गुनाहों के बारे में या छुटकारा के बारे में या कोई बीमारी से शिफा पाने के बारे में बात करने का वक्त नहीं है. என்னால முடியவில்லை, ஏன் அவர்கள் செய்தார்கள், ஏன் சபையில் இப்படி நடக்கிறது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ये காலம் मुझसे नहीं हो रहा है, वो ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों है, सोचने का वक्त नहीं है. நான் ஊழியம் செய்ய முடியுமா, எப்படி செயல்பட क्या முடியும், मैं खुदा के लिए काम कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा काम करूँ, ऐसा सोचने का वक्त भी नहीं है. இந்த நாளில் நாம் கழுகுகளைப் போல பறக்கிற காலகட்டத்தில் வந்துவிட்டோம். इन दिनों में हमें देखना चाहिए कि खुदा के मदद के साथ हमें ऊंचा उड़ना चाहिए. வேதத்தினுடைய நாட்கள் சொல்றது நாம் கடைசி நாட்களில் இருக்கிறோம். वचन के हिसाब से देखा गया तो हम अंतिम दिनों में पहुंच गए हैं. அது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கடைசி நாள். वो हर एक इंसान के लिए अंतिम दिन है. நம்ம ஊழியக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, अगर वो बड़े बड़े खादिम में, மெய்ப்பரகாக இருந்தாலும் சரி, अगर वो बड़े बड़े पास्टर हैं तब भी, தீர்க்கதரிசிகளாக जितना चाहे बड़े नबी हो, आपके लिए और मेरे लिए, उनके लिए, सबके लिए कलाम के हिसाब से सबके लिए अंतिम दिन है. சத்தத்தை கேட்டு வேலைப்பாடு என்றார். और जो भी मेरी आवाज़ को सुनकर जागता रहेगा, ஒருவன் இருதயத்தில் விசுவாசத்தை வைத்து செயல்படுவான் जो दिल ही दिल में पूरे विश्वास के साथ काम करता रहेगा, மாத்திரம்தான் இயேசுவின் வருகையில் காண முடியும். सिर्फ वही है जब यीशु के आने के वक्त में यीशु के साथ जाएगा. ஈமை பொழுது ஒன்று சொல்லுகிறது, ஈமை பொழுதில் தேவனுடைய வருகை. वचन में लिखा है जब यीशु आएगा तो अचानक आएगा. அதற்கு முன்பாக சொல்லப்படுகிறது எக்காலம் தோறும் ஜொலிக்கும். और उसके पहले हम देखते हैं कि सॉरी ट्रम्पेट साउंड, ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக நாம் சீசர்களுக்கெல்லாம் நமக்கு தெரிய வேண்டியவரை ஆவிக்குரிய காதுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் திறக்கப்பட வேண்டும். एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि रूहानी तौर पर हमारे दिलों को और कानों को खोल के रखना चाहिए ताकि खुदा की आवाज़ भी कान में पड़े और दिल से आप उन बातों को समझ पाए. हालेलुया. எக்கால சத்தம் கேட்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. वचन में लिखा है खुदा की आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी. தெசலோனிக்கர் பவுல் சொல்கிறார், எக்காலம் ஜொலிக்கும், அப்போது கண்கள் ஏறெடுக்கப்படும்போது மத்தியவானத்தில் இயேசு வருவார். पहला थिस्सलुनियों में वचन ऐसा है कि जब आवाज़ कान में पड़ेगी, आंखों को उठा के ऊपर देखोगे तो यीशु नजर आएगा. 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் சொல்லப்படுகிறது, இதோ நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்கிறேன், கடைசி எக்காலம் ஜொலிக்கும் போது நாம் மறுரூபமாக போகிறோம். और हम देखते हैं कि वही एक पहला थिस्सलुनियों की किताब में कि जब खुदा की आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी, वही वक्त है जब यीशु के साथ शारीरिक तौर पर नहीं बट रूहानी तौर पर उसके साथ वापस जाने के लिए. हालेलुया. நாம் இந்த சரீரத்திலிருந்து மாறுகிற காலகட்டத்தில் வந்திருக்கிறோம். हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अभी शरीर को छोड़कर रूह में आगे बढ़ना है. இந்த சரீரமானது மறுரூபத்திற்குள் காலத்தில் வந்திருக்கிறோம்.
हम देखते हैं कि इस शरीर को छोड़कर रूहानी तौर पर खुदा के साथ आगे बढ़ना है। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? कितने लोग विश्वास करते हैं? இன்னும் நம்ம பழைய அந்த காலத்தில் சபைகளൊക്കെ இது பாவத்தை குறித்து பரிசுத்தத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற காலகட்டம் அல்ல இது. हम उन दिनों के कलीसिया की तरह गुनाह के बारे में, छुटकारा के बारे में बैठ के बात करने का वक्त नहीं है। அந்த கிறிஸ்துவானவன் அவன் வேகமாக செயல்படத் தொடங்கிவிட்டான். हम देखते हैं कि इब्लीस भी अपने काम जो कर रहा है बहुत तेजी से कर रहा है। அவன் 99% கிறிஸ்துவை போலவே செயல்படுகிறான். वो 99% मसीह जैसा ही काम कर रहा है। நாம் அவனை விட அதிகமாக செயல்பட வேண்டும் என்று ஆவியானவர் நாட்கள் அவருடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார். तो पाकरू कहता है कि मैं मेरे मसा से आपको भरूंगा, आप इब्लीस से बढ़ के काम करें। आप जानते हो किसके ऊपर उंडेलने वाला है? தேவன் மேல் பயமும் தேவன் மேல் பக்தி உள்ளவர்கள் என்று தன் காரியங்கள் செய்கிறார். अगर वाकई में खुदा को लेकर आप भय मानते हो और कलाम के हिसाब से चलते हो, तब खुदा अपने रूह को आपके ऊपर उंडेलेगा। हालेलुया। தேவனிடத்தில் பயப்படுறவர்கள் மேலும் தேவன் மேல் பக்தி உள்ளவர்கள் तो खुदा से डरना है और खुदा के साथ गहरत भी रखना है। தேவன் மேல் பயப்படுறவர்களும் தேவன் மேல் பக்தி உள்ளவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? तो अगर वाकई में आप खुदा से डरते हो और आपका गहरत भी है अगर खुदा को लेकर, तो कैसे होगे? 119வது சங்கீதம் भजन संगीता 119ல 147 148 வாசிப்போம். 119 119 119 147 148 147 और 148 119 147 and 148 119 उसका 147 and 148 मैंने वो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। मैन हालेलुया। பாருங்கள், ஒரு ராஜா தாவீது ராஜா என்பவர் அதிகாலையில் எழுந்து தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து அந்த வார்த்தை அவருடைய மன்னாவை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர் பேசப்படுவதை பார்க்கிறோம். हम देखते हैं वो एक राजा है, दाऊद एक राजा है। राजा होने के बावजूद सुबह सुबह उठकर खुदा के हुजूरी में बैठ के चाहता है कि खुदा उसके साथ बात करे। அவருடைய அரண்மனையில் பல வேலைகள் இருக்கிறது. அவருக்கு उसके लिए तो काफी काम हुआ होगा उन दिनों में। எதிர்கொண்டிய காரியங்கள் இருக்கிறது. எதிரிகள் उसके विरुद्ध जो हैं उनके लिए भी तो काम தன் करना था। மகனை அவனை கொல்வதற்காக ஆயத்தமாயிருக்கிறார். हम देखते हैं खुद उसका बेटा उसको ढूंढ रहा था उसको मारने, குடும்பத்தில் குழப்பம், और उसके परिवार में भी काफी प्रॉब्लम्स थी அவன் சரீரத்திலும் போராட்டம். और शारीरिक तौर पर भी काफी प्रॉब्लम्स थी। இப்படிப்பட்ட நெருக்கத்தில் அவர் செய்கிற வேலை எப்படி இருக்கிறது என்றால், फिर भी हम देखते हैं कि वो राजा क्या कर रहा है। அதிகாலையில் எழுந்து தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறவர்களாக சப்தமிட்டு காத்திருக்கிறவர்களாக இருக்கிறார். सुबह सुबह खुदा के हुजूरी में वो उठकर बैठता है, அவர் காத்திருக்கும் போது தேவனுடைய வசனமானதை பெற்றுக்கொண்டு தியானிக்கிறவராக இருக்கிறார். और जब हजूरी में बैठा है तो खुदा अपना कलाम उसको देता है जिसको लेकर वो ध्यान करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், அடுத்து 119வது சங்கீதம் 55 उसी 119 में हम 55 55 और 56 पढ़ेंगे। 55 and 56। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया। பாருங்கள், அவர் என்ன செய்கிறார்? ராக்காலத்தில் அவர் அதை பெற்றுக்கொண்டதை தியானிக்கிறவராக இருக்கிறார். हम देखते हैं रात को भी उसको जो कलाम मिला है उसको लेकर वो ध्यान करता है, அவர் நான் செய்தெல்லாம் சரியா என்று அவன் நிதானிக்கிறவராக இருக்கிறார். और वो अपने आप को परखता है कि जो मैंने किया है क्या मैंने सही की है। பாருங்க, ராத்திரி அதை சிந்திக்கிறவராக இருக்கிறார். तो हम देखते हैं रात को उन चीज़ों के बारे में सोचता है। அதில் இப்போது 62வது வசனத்தை வாசிப்போம். और हम 62 पढ़ के देखेंगे। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हालेलुया। பாருங்க, பாதி ராத்திரியில் எழுந்து அவன் துதிக்கிறவனாக तो இருக்கிறான். हम देखते हैं आधी रात को उठकर वो धन्यवाद करने के लिए उठता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதிகாலையில் எழுந்து தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்கிறார். सुबह सुबह उठकर उसको कलाम मिल जाता है, அதை இதயத்தில் வைத்து அந்த நேரம் ஒரு நாள் முழுவதும் அதை உட்கொண்டு தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறார். दिल में रखकर दिन भर उस चीज़ को लेकर ध्यान करता रहता है, செயல்படுத்துவனாக இருக்கிறார். और रात को उन चीज़ों के बारे में परखता है, அந்த இரவு வந்ததும் அதை நான் சரியாக செயல்படுத்தினானா என்று ஆராயனாக और अपने आप को परख के देखता है कि वाकई में इस कलाम के जरिए मैंने किया है कि नहीं। அதை பெற்றுக்கொண்ட நன்மை நிமித்தம் பாதி ராத்திரியில் எழுந்து அதற்காக துதிக்கிறவனாக இருக்கிறார். और क्योंकि उसको बात समझ आती है कि खुदा ने मेरे लिए अच्छा भला किया है, तो आधी रात को उठकर खुदा का शुक्रिया अदा करता है। हालेलुया। அது எப்படி நடக்கும்? ये कैसा मुमकिन है?
நம்ம ஒரு நாளைக்கு பைபிளை படிக்கிறத கேலண்டர்ல அந்த வார்த்தையை வச்சுட்டு ஸ்தோத்திரம் என்று போறோம். हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कैलेंडर में जो कलाम लिखा है उसको पढ़कर कहते हैं मैंने बाइबल पढ़ ली. கர்த்தர் மன்னாவை கொடுத்தா சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கோம். अब कहते हो खुदा ने मुझे मन्ना दी. ஹல்லேலூயா. அதே தாவீது ராஜா ஆரம்பத்தில் 1வது சங்கீதம் 1வது வசனத்தை வாசிப்போம். पर हम देखते हैं पहला वचन संगीता पहला वचन पढ़ के देखें कि दाऊद ने कैसा लिखा है. அவர் எப்படி தியானிக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். वो ध्यान कैसे करता है उसको आप पढ़ के देखें. एक का एक, 1 2 एक का एक और दो. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है. आमीन. हालेलुया. துன்மார்க்கர் வழியில் இருந்து துன்மார்க்கம்னா வெளியே ஆள் இல்லை, எனக்கு தேவையில்லாத ஆள் கூட நான் தேவையில்லாமல் பேசக்கூடாது. तो इसमें ऐसा लिखा है बट मैं एक बात आपको समझाता हूँ कि जो बुरे लोग हैं वो बुरे लोग नहीं हैं, जो सही रास्ते में नहीं हैं सभी बुरे हैं. ரெண்டு சகோதரர்கள் ஒன்று கூடினா கர்த்தரை குறித்து பேசணும், வேற ஆளுக்கு வேற சம்பவத்தை குறித்து பேசணும். अगर एक भाई बहन इकट्ठा होकर बात करते हैं तो खुदा के बारे में बात करना है, किसी और के बारे में बात नहीं करना. எங்க ரெண்டு பேர் கூடி தேவனை மகிமைப்படுத்துறாங்களோ அங்க இயேசு இருப்பார். जहाँ पर 2-3 लोग मिलकर खुदा के बारे में खुदा की महिमा के लिए बात करते हैं उनके बीच में यीशु है. இந்த சகோதரர்கள் நாம் நம்மளுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது? आज हम सबका हाल कैसा है? தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் பிரச்சனை என்றால் மனைவியும் கணவனும் பேசுவது வேறு வார்த்தைகளாக இருக்கும். हम देखते हैं परिवार में पति पत्नी के बीच में जो बात है बात ही कुछ और है. சபைக்குரிய காரியங்களாக இருக்கின்றோம், சபைக்குரிய குறைகளை குறித்து பேசுகிறவர்களாக இருக்கும். अगर पति पत्नी कलीसिया के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ कलीसिया की कमी का जिक्र करते हैं. வேலைக்குரிய பகுதியாக இருந்தால் அந்த வேலைக்குரிய பலகீனங்களை குறித்து பேசுகிறவர்களாக. अगर हम काम के बारे में बात करते हैं तब भी काम में जो कमी है उन्हीं कमियों का जिक्र कर कर बात करते हैं. हालेलुया. தேவன் அந்த நாளை நமக்கு எதுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக. पर खुदा ने वो धन्य दिन हमारे लिए क्यों दी है ताकि इन कमियों को हम ना देखें और उस पर हम फतह पाएं. இன்று ஒரு காரியத்தை திஷ்டாந்தத்தை நாம் தியானித்து நாம் ஜெபித்து பலன் அடைய போகிறோம். आज हम एक एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और उसको समझकर हम अपने आप को सौंपकर दुआ करेंगे. இயேசு அன்று பேதுருக்கு தன் சீஷர்களை பலப்படுத்தினது போல இன்று இயேசு அதே இயேசுவானவர் நம்மையும் அனைவரும் பலப்படுத்துவார். जैसे यीशु ने उन दिनों में पतरस के साथ काम किया था वैसे ही आज पाकरू हमारे साथ काम करना चाहता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, மார்க் எழுதின புத்தகம் 11வது அதிகாரம் 13 14. हम मार्कस में पढ़ेंगे. मार्क 11 மார்க் 11 13 14. 11 उसका 13 और 14. मार्क 11 उसका 13 और 14. वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय ना था. इस पर उसने उससे कहा, आपसे कोई मेरा फल कभी न पाए, और उसके चेले सुन रहे थे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, ஒரு சம்பவம், திஷ்டாந்தமான ஒரு சம்பவத்தை இது நம்ம மேலோட்டங்கமா பார்த்தால் ஒரு சம்பவமாக இருக்கும். हम इस वचन को अगर वाकई में जस्ट ऐसे पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक ऐसा कुछ नजर आएगा जैसे एक कहानी की तरह. அன்று சீஷர்களுக்கு ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக இயேசுவானவர் தன் சீஷர்களுக்கு இந்த காரியத்தை. पर उस दिन यीशु ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो अपने शागिर्दों को कुछ सिखाना चाहता था. விசுவாசத்தினுடைய வல்லமை எப்படி என்பதை காண்பிப்பதற்காக, எப்படி செயல்பட வேண்டும் காண்பிப்பதற்காக. विश्वास की ताकत क्या है और जब वो बाहर से नजर आए तो कैसा लगेगा वो सिखाने के लिए. பாருங்கள், இயேசுவானவர் எரிகோவிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். यीशु जरीको से वापस आ रहा है சீஷர்களோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார். और शागिर्दों के साथ आ रहा है. வசனம் சொல்வது இயேசுக்கு அந்த நேரத்தில் பசியாக இருக்கிறது. और वचन में लिखा है कि यीशु को उस वक्त भूख लगी. அந்த பசிக்கும் போது அவர் சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்க்கிறார். और जब उसको भूख लगी वो इधर उधर देख रहा था तो தூரத்தில் ஒரு பச்சை பசையிலிருந்து இந்த இலையோட மரம் இருக்கிறது. और उसको एक पेड़ नजर आया दूर एक जगह पर. அந்த மரம் அத்தி மரமாக இருக்கிறது. और वहाँ पर गया था कि वहाँ पे फल ढूंढे. மரத்தில் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று இயேசு சொன்னார். और इस सोच के साथ यीशु उस पेड़ के पास गया कि क्या मुझे कुछ मिलेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது அந்த காலங்கள் பழம் கொடுக்கிற காலம் அல்ல. पर वचन में लिखा है वो फल देने का समय नहीं था. இயேசுக்கு தெரியுமா தெரியாது? क्या यीशु इस बात को जानता था कि नहीं? காலம் அல்ல தெரியுமா தெரியாது? वो जानता है ना कि समय है कि नहीं. ரெண்டாவது, दूसरी बात, மரத்துல கனி
இருக்கா இல்லைன்னு தெரியுமா தெரியாதா? और वो पहले से तो जानता है कि पेड़ में फल होगा कि नहीं। இயேசுக்கு பசி வந்தா அந்த பசியை போக்குறதுக்கு அவருக்கு நிறைய காரியங்கள் உண்டு இல்ல? यीशु को अगर भूख लगी तो वो जो चाहे खा सकता है ना। அப்ப ஏன் அந்த பசிக்காக ஒரு காரியத்துக்காக அந்த மரத்தோட வந்து நிற்கிறது? क्यों वो भूख की वजह से पेड़ के पास जाना है? அல்லேலூயா. சிந்திக்கும்படியாக. सोच कर देखें। ஆமென். பாருங்க அந்த மரத்துக்கிட்ட வந்த பிறகு என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். जब पेड़ के पास यीशु पहुंच गया तो हम देखेंगे कि क्या हुआ। 14வது வசனம் 14 वचन में लिखा है, இயேசு அதை பார்த்து இது முதல் ஒரு காலம் ஒருவனும் உன்னிடத்தில் கனியை புசியாது இருக்க கடவன் என்று சபிக்கிறார். तो यीशु ऐसा बात करता है और बोलता है पेड़ को देखकर कि इस पर उसने उसे कहा अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। அல்லேலூயா. हाँ। வேதம் சொல்கிறது இயேசு அந்த அத்தி மரத்தை பார்த்து பேசுகிறார். और वचन में लिखा है कि पेड़ को देखकर पेड़ से यीशु बात कर रहा है। அல்லேலூயா. அப்ப இயேசு அந்த அத்தி மரத்தை பார்த்து பேசுகிறார் என்றால் அந்த அத்தி மரம் ஏதோ பேசியிருக்கணும் இல்லையா? अगर यीशु पेड़ के साथ बात कर रहा है तो ये भी मानना पड़ेगा ना कि पेड़ ने कुछ तो बात की होगी यीशु के साथ। அல்லேலூயா. நான் பாஸ்டர் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பாஸ்டர் ஏதோ பேசினா தானே பாஸ்டர் திருப்பி பேசுவார். जब हम पास्टर साहब के साथ बात करते हैं उनको देखकर तभी तो वो वापस बात कर सकते हैं ना हमारे साथ। அல்லேலூயா. பாஸ்டர் இருக்கிறார், நான் இருக்கிறேன். पास्टर साहब हैं, मैं हूँ। நானும் பார்த்து சிரிப்பேன். अगर पास्टर साहब मुझे देखकर मुस्कुराएंगे तब मैं मुस्कुराऊंगा। அவர் சிரிக்கிறதா சிரிப்பேன். अगर वो हंसेंगे तो मैं भी हंसूंगा मिलकर। இப்போ சஞ்சய் பிரதர் ஏதோ என்னை பார்த்து சிரிக்கிறதா நான் அவரை பார்த்து சிரிப்பேன். अगर संदीप भाई मुझे देखकर हंसेंगे तो तभी मैं भी हंसूंगा। ரியாக்ஷன் இருக்கு. तो वो करेंगे तो मैं रिएक्ट करूंगा ना। வேதம் சொல்கிறது அத்தி மரத்தை பார்த்து பேசுகிறார். पर यीशु पेड़ के पास जाकर पेड़ के साथ बात कर रहा है। இங்கிலீஷ் பைபிள்ல சொல்லுது அத்தி மரத்தை பார்த்து இயேசு ஆன்சர் அதுக்கு பதில் சொல்கிறவராக இருக்கிறார் என்று. अगर हम इंग्लिश में कलाम को पढ़ के देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि जीसस answered and said to the tree। அப்ப அந்த மரம் இயேசு கிட்ட இத பேசுகிறது. तो यीशु ने जवाब दी है तो पेड़ ने कुछ तो बात की होगी ना। அல்லேலூயா. நம்ம ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுக்கு எதிரில் இருக்கிறவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு புரியாத காலத்துல மனுஷன் பேசுறது புரியாத இருக்கிற காலத்துல हम कहते हैं रूहानी है बट जब इंसान हमारे साथ बात करता है तो हम बात को समझते नहीं हैं। அல்லேலூயா. ஏலியை போல இருக்கிறோம். हम एली जैसे हैं ஆனால் அழுவது என்ன அழுவதான்னு கூட தெரியாமல் ஏலியை பேசினது. क्योंकि उन दिनों में जब हाना रो रो के दुआ कर रही थी तो एली को कोई समझ में नहीं आया। ஆனால் இந்த நாட்களில் எல்லா ஜீவன்களும் இயற்கைகளும் பேசுகிற சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாக நாம் மாற வேண்டும். पर हमें इन दिनों में अपने आप को उस हद तक बदलाव के लिए सौंपना है कि हम यीशु ने जो भी यहाँ पर रचाया है उन चीज़ों की जो आवाज़ है उसको भी हम समझ पाएं। எரேமியால சொல்லப்படுது கணக்கலாம் குருவிகளும் எல்லாம் வரும் போகிற காலத்தை அறிந்திருக்கும் போது என் ஜனங்களை ஒன்றும் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்றார். यर्मिया में लिखा है खुदा ने जो रचाया है ये जानवर पक्षी सब जानते हैं मेरे वक्त को बट आप मेरे बच्चे होकर नहीं जान रहे हो। அல்லேலூயா. பாருங்க அந்த இடத்தில் மரத்தை பார்த்து இயேசு பேசுகிறார். तो हम देखते हैं वहाँ पर पेड़ को देखकर यीशु बात कर रहा है ஒரு இடத்தில் ஒரு கனியும் புசிக்காதபடி நீ பட்டு போக வேண்டும் சபிக்கிறார். और यीशु कहता है कि आज के बाद कोई फल कभी नहीं देगा। ஏன் சபிக்க வேண்டும்? ऐसा क्यों बोलना चाहिए? அது காலம் அல்ல காலம் இல்லையே. यीशु जानता था कि ये समय नहीं है फल देने का। அது பழம் கொடுக்கிற காலம் அல்ல அது. तो उस वक्त तो कहीं भी उसको फल नहीं मिलेगा। அது காலமாக இருந்து பழம் கொடுக்காமல் இருந்தால் இயேசு சபிக்கிறார். अगर समय सही था और फल नहीं था तो यीशु ऐसा बोल सकता था। அது காலமும் அல்ல. तो वहाँ पर समय नहीं है இது நிறைய மரம் இருக்கு. और काफी कुछ पेड़ तो आसपास में होगा ना। மரத்தெல்லாம் விட்டுட்டு பச்சை பச்சையில இருக்கிற மரத்தை उन पेड़ों को छोड़कर इस पेड़ के पास आकर बोल रहा है। அல்லேலூயா. சிந்திக்கும்படியாக. सोच कर देखें ஏனென்றால் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो खुदा के लिए नामुमकिन है। வயதான அபிரகாமுக்கு குழந்தை கொடுக்க முடியும் என்றால் ஒரு மரத்துக்கு கனி கொடுக்க முடியாதா? अगर बूढ़ा होने के बाद अब्राहम को वो एक बाप का स्थान दे सकता है तो एक पेड़ में फल क्यों नहीं लेके आ सकता? அல்லேலூயா. கனிக்கு இயேசுவால கனி கொடுக்க முடியும் என்று மரத்துக்கும் தெரியும். और पेड़ भी जानता है कि यीशु फल ले आ सकता है। ஆனால் அதிகமா படித்த மரமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். मुझे लगता है काफी पुराना पेड़ होगा वो, அதான் பச்சை பச்சையில இருந்தது. इसलिए वो इतना हरा भरा नजर आ रहा था। அது இயேசுவை பார்த்து சொல்லியிருக்கும். और शायद उस पेड़ ने यीशु को देखकर कहा होगा, பசிக்குது இது காலம் இல்லை அதனால கனி கொடுக்க முடியலன்னு அன்பா பேசுது.
शायद पेड़ ने प्यार से यीशु को कहा होगा कि हाँ मैं जानता हूँ तुझे भूख लगी बट अभी ये फल देने का समय नहीं है। அல்லேலூயா. இன்னும் நிறைய நம்ம அதிகமா படிச்சவங்க செய்யற வேலை தான் இது. आजकल जो पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ऐसे ही करते हैं நம்மளே அதிகம் படிச்சவங்க நிறைய புத்திமதி சொல்றோம். और हमारे बीच में जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं दूसरों को जाकर हम एडवाइस देते हैं। அதே மாதிரி அந்த மரம் இயேசுக்கு சொல்லி இருக்கு. वैसे ही शायद पेड़ ने कुछ कहा होगा यीशु को देखकर। அல்லேலூயா. பாருங்க இல்ல என்னால கொடுக்க முடியவில்லை என்று அது தன்னுடைய அதோட கஷ்டத்தை தான் சொல்கிறது. இயேசு வசிக்குதே இயேசு கொடுக்க முடியவில்லை. पर देखेंगे तो हकीकत है कि पेड़ ने शायद ये कहा होगा कि समय नहीं है, मैं फल नहीं दे पा रहा हूँ। அதற்கு ஏன் சபிக்கணும் இயேசு? तो फिर यीशु ने पलट के ऐसा क्यों कहा? அல்லேலூயா. சிந்திக்க முடியாது. सोच के देखें। பாருங்க தேவன் இந்த பூமியில் ஒவ்வொன்றையும் நல்லது நல்லது என்று படைத்து யாருக்கு கொடுக்கிறார்? மனிதனுக்கு கொடுக்கிறார் ஆண்டு கொள்ளும்படியாக. जब परमेश्वर ने सारे चीज़ों को पूरी दुनिया को रचाया था तो हर एक दिन उसने हर चीज़ को रचाकर कहा अच्छा है करके किसके हाथ में दिया था? इंसान के हाथ में तो खुदा ने सब कुछ दी। இயற்கையை மனிதன் ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் என்றால் இயற்கை மனிதன் ஆளப்படும். सारी सृष्टि को इंसान के हाथ में दिया है, इंसान के हाथ में वो पूरा अधिकार खुदा ने दी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயற்கையானது நமக்கு முன்பாக எதுவும் இருந்தாலும் அது நம்மை தான் அதை ஆள வேண்டுமே தவிர எனக்கு சூழ்நிலையை ஆளக்கூடாது. सारी सृष्टि को कोई अधिकार नहीं दी गई और हालातों को देखो तो सृष्टि की हिसाब से देखा गया तो रचाने वाला अगर खुदा है तो उस पर हक जताने वाले हमें होना चाहिए। இயேசுவால் வார்த்தையால் உருவாக்கப்பட்டவைகளாக क्योंकि खुदा के वचनों को इस्तेमाल करके उनको रचाया गया था உருவாக்கப்பட்டு மனிதனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று கொடுக்கப்பட்டது. और इंसान के नीचे रहने के लिए उनको रचाया गया। அப்படி இருக்கும்போது अगर ऐसा है அது என்னை கிட்ட பேசலாமா? क्या वो आकर मेरे खिलाफ कुछ बोल सकता है? அது நீ கனி குடிப்பியா கனி குடிக்க முடியாது. ரெண்டாவது நான் பேசுற வரைக்கும் நீ அமைதியா இருக்கணும். वो फल दे रहा है कि नहीं है वो बात नहीं है, जब तक मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसको मुंह नहीं खोलना चाहिए। அல்லேலூயா. அதே போல தான் இன்று எனக்கு முன்பாக நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். वैसे ही मेरे आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, பொருளாதார பிரச்சனை இருக்கலாம், शायद पैसों का प्रॉब्लम हो சரீர பிரச்சனை இருக்கலாம், या शारीरिक तौर पर कोई बीमारी குடும்ப பிரச்சனை இருக்கலாம், या परिवार के हालात ठीक नहीं हैं। பிரச்சனையாக இருக்கலாம். जो भी हो आपकी प्रॉब्लम्स அவைகளெல்லாம் நம்ம கிட்ட பேசணும். वो सब आपके सामने आकर बात करेंगे। பேசுமா பேசாதா? बात करेंगे कि नहीं आपके हाल? பிரச்சனை பேசுமா பேசாதா? जब प्रॉब्लम्स है तो बात करेगी ना आपके सामने आकर। 28ஆம் தேதி நீங்க உங்க ஃபோன் பார்க்கும்போது ஃபோன் உங்களுக்கு பேசும். जब आप 28 तारीख को अपना अकाउंट बैलेंस देखोगे अकाउंट बैलेंस आपके साथ बात करेगा। बैंक अकाउंट आपको बताएगी तेरे पास पैसे नहीं है, तू अगला हफ्ता चेक कर। அல்லேலூயா. அது விழுந்துதான் பேசுதா? क्या बैंक अकाउंट बात कर रही है? மரம் பேசுறதுன்னா புரியல, जब मैंने कहा पेड़ बात कर रहे हैं आपको समझ नहीं आई, பிரச்சனை பேசுனா புரியல, और मैंने कहा आपके सामने मुसीबत भी बात करेगी समझ नहीं आई। ஆனா பேங்க் அக்கவுண்ட் பேசுனா மட்டும் புரியும். जब मैंने कहा बैंक अकाउंट बात कर रही है सबको समझ आ गया। तो कितना प्रॉब्लम है हर एक को सोच के देखें। பாருங்க அந்த மரம் எதிர்த்து நிக்குது என்னால் முடியவில்லை. वो पेड़ कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा, ஆனா அதே போல பேங்க் அக்கவுண்ட் சொல்லுது எனக்கு அந்த இடத்துல காசு இல்லை, और बैंक अकाउंट बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, நான் உனக்கு கொடுக்க முடியாது. मैं कुछ नहीं कर सकता। என்னோட வியாதி சொல்லுது உடம்பு வியாதி சொல்லுது என்னால் முடியாது, எனக்கு இந்த பகுதியானது சரியில்லாமல் இருக்கும், நான் வலிக்கத்தான் செய்யும் என்று என்னோட உடம்பு சொல்கிறது. जो बीमार है उनके शरीर उनको देखकर बोलेगा कि नहीं पेट में दर्द है मुझसे नहीं होगा। இதற்கு சூழ்நிலை சொல்கிறது நான் உனக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டேன். मेरे खिलाफ जो भी हाल है जो भी हालात है वो सब मेरे खिलाफ होकर कहते हैं कि नहीं तू नहीं कर सकता। அரசாங்கத்திலிருந்து சில காரியங்கள் எதிர்த்து நிற்கிறது. गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मिलना चाहिए वो भी हमारे खिलाफ है। இவைகளெல்லாம் என் முன்பாக நிற்கிற தடைகளாக இருக்கு. ये जो भी हमारे खिलाफ आगे पीछे हैं ये सब हमसे बात करती है। ஆனால் அவைகள் எனக்கு பணத்துல காசு இருக்கணும், காசு வராமல் இருக்கு. मेरे पास तो पैसा होना चाहिए बट बैंक में नहीं आया पैसा। பேப்பர் ஒர்க் கிடைக்கும், எனக்கு கிடைக்காமல் இருக்கு. मेरे पेपर्स तो ठीक हैं फिर भी मुझे नहीं मिल रही है। என்ன உடம்புக்கு சுகத்தில் சரீரம் நன்மையில மாதம் வேண்டும், ஆனால் மாதாமல் இருக்கு. मैं चाहता हूँ कि मेरे शारीरिक तौर पर भी मुझे शिफा मिले बट नहीं मिल रही। ஆனால் அவைகளும் சொல்கிறது இது மாதிரி சூழ்நிலையை பார்த்து அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கு. पर हर एक हाल अपना अपना रीज़न बताता है। அதான் ஆரம்பத்தில் நீதிமொழிகள் பார்த்தோம், சுய புத்தியில் நாம் சாவாயா. इसलिए जो नीति वचन में हमने पढ़ा है खुद के सोचों पर आप मत डिपेंड करो। சுய புத்தி என்பது சூழ்நிலை பார்த்து खुद के सोच जो है ना आगे का जो हालात है उसको देखकर हम फैसला लेंगे। வேதம் சொல்கிறது உன்
புறம்பாக இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் உடைக்க पर वचन में लिखा है, अगर दिल से बातों को परख कर तू मुंह पे लेकर आएगा तो हर बात को मैं तेरे लिए करूंगा। ஹalleluya हालेलुया। அதான் தேவன் ஜீவனுள்ள வல்லமை நமக்கு கொடுக்கிறது यही है जो जिंदा कलाम का ताकत जो खुदा ने हमें दी பாருங்க है। அந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அத்திமரம் பட்டு போகட்டும் என்று சொன்னார் और वहां पे लिखा है कि आगे से तू कभी फल नहीं அந்த வசனம் खाएगा। கடைசியாக சொல்கிறது அதை அவருடைய சீஷர்கள் கேட்டார்கள் और वचन के आखिर में जब हम पढ़ के देखते हैं तो ऐसा लिखा है कि उसके चेले सुन रहे थे இன்று நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் और आज हम भी बैठ के सुन रहे हैं। இயேசு அத்திமரத்தை பார்த்து சபித்ததை சீஷர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதை போல இன்று அதே காரியத்தை அவர் பேசிக் கொண்டிருப்பதை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் जैसे उन दिनों में यीशु पेड़ के सामने खड़ा होकर बात कर रहा था, उसको चेले सुन रहे थे, वैसे ही आज जो पाखरू बात कर रहा है हम सब बैठ के देख रहे हैं। பாருங்கள் அதே பகுதியில் 11வது அதிகாரத்தில் 20வது வசனத்துக்கு என்ன வாசிப்போம் 20 21 வாசிப்போம் उसी चैप्टर में आप 20 और 21 को पढ़ के देखें। मार्कुस 11 उसका 20 और 21। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। ஹalleluya பாருங்கள் அடுத்த நாள் என்ன நடக்கிறதால் மரம் பட்டு போயிருக்கிறது तो हम देखते हैं कि अगला दिन जब वो वहां से आए थे तो वो पेड़ बिल्कुल भी सूख गया। பேதுரு அங்கேருந்து வந்து கேட்கிறார் ரபி நேற்று சொன்ன மரம் இந்த பட்டு போயிடுச்சு என்று और पतरस को याद है तो वो आके बोलता है, हे रब्बी ये देख। பாருங்கள் அந்த இடத்துல அந்த பேதுருடைய வார்த்தையை கொஞ்சம் கூர்ந்து தியானித்தோமானால் அந்த வார்த்தை எப்படிப்பட்டது என்று நாம் பார்ப்போம் अगर हम इन वचनों को गौर कर कर पढ़ें तो आपको और गहराई की बात समझ आएगी। 21வது வசனம் முடிவு இப்படி சொல்லி இதோ நீ சபித்த மரம் பட்டு போயிற்றே என்று சொல்கிறார் जैसे पतरस आके बोलता है कि जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वो सूख गया है। அது அது தன்மை என்னவென்றால் இயேசுவே நீ சொன்ன மாதிரி சொல்லிக் கொடும் என்ற அவருடைய வாஞ்சையை நாம் பார்க்கிறோம் हम देखते हैं इस वचन में पतरस के अंदर एक सवाल है कि जो तूने मुंह से इकरार की है वो ऐसा कैसे हो गया। சொல்லும்போது அது பட்டு போயிடுச்சு तूने ऐसे ही कहा वो हो गया ஆனால் இன்று நான் அதை பார்க்கிறேன் और मैं आज देख रहा हूँ। அது எப்படி நடக்கிறது ये कैसे मुमकिन है। அது கேட்கிறவர் பேதுரு மட்டும்தான் और सवाल सिर्फ पतरस के अंदर आया है। அது கூர்ந்து கவனிக்கிறாருனால கேட்கிறார் उस बात को वो ठीक से परख रहा है इसलिए सवाल कर रहा है। இயேசு சொன்ன பதில் தெரியுமா और यीशु ने कौन सा जवाब दिया। சொன்ன பதில் पतरस को यीशु ने कौन सा जवाब, சொல்கிற பதில் और आपको भी वही उत्तर दिया। நான் போது அது வேரில் பட்டு விட்டது ஆனால் இப்போது தான் கண்கள் கண்டது जब मैंने श्राप दी उसी वक्त जड़ से वो सूख रहा था, बट आपको अभी नजर आ रहा है, बस यही फर्क है। ஹalleluya हालेलुया। நாம் சொல்லும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இயேசு அதை முடித்து விட்டார் என்று விசுவாசிக்கும் போது அது செயல்படும் हम जब कुछ बात को दोहरा रहे हैं तो हमें पूरे विश्वास के साथ कहना है, जब मैं बोल रहा हूँ खुदा तब ही काम शुरू कर रहा है। ஹalleluya हालेलुया। அடுத்த நாள் தான் தெரிகிறது ஆனால் இயேசு சொல்லுது நான் சொல்லும்போதே அது வேரில் பட்டு போக தொடங்கிவிட்டு अगला என்று தான் நமக்கு தெரிகிறது अगला दिन आंखों से उनको नजर आ रहा है, बट यीशु कहता है कि जब मैंने श्राप दी तब ही वो जड़ से सूखना शुरू हो गया था। ஹalleluya हालेलुया। நாம் அதே போல தான் நமக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை விசுவாசத்தோடு இயேசுவே நீர் இவைகளை செய்வதற்கு வல்லவராக இருக்கிற இந்த விசுவாசத்தோடு அறிக்கையிடும்போது அது செய்ய தொடங்கிவிட்டது நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் और जब कभी भी हम हमारे हालातों को लेकर दुआ करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ कहना चाहिए और दिल में भी मानना चाहिए कि खुदा कर रहा है। இயேசுடைய அற்புதம் எப்படி இருக்கும் என்றால் यीशु ने जो भी चंगा करके दिखाया है ஸ்டார்டிங்ல வேரிலிருந்து அவர் சுகம் கொடுக்கிறவராய் वो जड़ से शुरू करके बाहर नजर आने वाली काम करता है, இருந்து சுகம் கொடுக்கிறவராய் क्योंकि वो चाहता है कि जड़ से काम करें। அது சில வேளை சில நாள் ஒரு வாரம் எடுக்கலாம் ஒரு மாதம் எடுக்கலாம் இன்னும் ஒரு வருஷம் கூட எடுக்கலாம் शायद वो कुछ दिन में नजर आ सकती है या हफ्ता या महीना भी लग सकती है, ஆனால் வார்த்தை விசுவாச வார்த்தை வந்து சொல்லிவிட்டால் அது ஆகும் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் पर अगर विश्वास के साथ मैंने कुछ कहा है तो आपको ईमान रखना चाहिए कि वो वाकई में होगा। ஹalleluya हालेलुया। ஏனென்றால் நம் வார்த்தை சொல்கிறது கர்த்தர் சொல்கிறார் உண்மை உள்ளவர் சொல்கிறார் क्योंकि हमारा खुदा सच्चा खुदा है, वफादार है, वचन में जो लिखा है वो सच है। ஆமென் हालेलुया। அப்ப இயேசு ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் तो यीशु जिंदा खुदा है அவர் எனக்குள் இருக்கிறார் और वो मेरे अंदर बसा हुआ है ஆவியானவர் எனக்குள் வாசமாய் और पाखरू मेरे अंदर काम कर रहा है और मैं खुदा का हैकल हूँ। நான் ஆவியினால் பெற்ற ஆவியில் தங்கியிருக்கிற பரிசுத்த ஆலயமாய் இருக்கிறேன் तो मैं रूह में पैदा होकर नए सिरे से मैंने जन्म ली है और पाखरू मेरे अंदर बसा हुआ है। இதெல்லாம் நான் சொல்லிக்கொண்டு ये सब आपको इकरार करना चाहिए हर रोज, நாம் உட்கார்ந்து எழுதிக்கொண்டு ஊழியக்காரர் ஜெபிக்கிறதுக்கு போய் கொண்டிருந்தால் நாம் நிலைமை அது और उसके बाद अगर रो रो कर खादिमों के पास जाके दुआ करते हैं तो कौन सा फायदा है।
சிந்திக்கும்படியாக सोचकर देखें। இயேசுவுடைய சீஷர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு பலன் அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். यीशु के शागिर्द को आगे बढ़कर उठकर और खुदा से सामर्थ पाकर आगे बढ़ना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। சபை என்பது நாம் புறப்பட்டு போய் பல பேருக்கு பலன் கொடுக்கிறவர்களாக மாற வேண்டும். कलीसिया में जो हैं उनको ये काम करना चाहिए कि आप कलीसिया से बाहर निकले, दूसरों की ताकत का काम बने। பலன் உண்டாக வேண்டும். जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर लोगों को ताकत मिले। जहाँ पर भी आप खड़े रहो खुदा की जलाल नजर आए, और जहाँ पर भी आप खड़े हो जिंदा खुदा नजर आए, क्योंकि खुदा कहता है जीवन जल आपके अंदर से निकलेगी और उस जीवन जल को आपके अंदर से निकल के जाना पड़ेगा। எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை என்றாலும் பிரச்சனை இருக்குதான். जितना चाहे आपके प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स तो होगा। கர்த்தருடைய அற்புதம் உண்டு. दो तरीके की चंगाई है। ஒரு வித வல்லமையானது உடனடியாக முடிந்துவிடும். एक काम ऐसा है कि फौरन उसी वक्त पूरा हो जाता है। இன்னொரு வித வல்லமை அந்த பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருக்கும், ஆனால் தேவன் என்னை பலப்படுத்திக் கொண்டு திடமாக வைத்தார். पर दूसरी बात ऐसा होगा कि उस काम को खुदा आहिस्ता आहिस्ता कर रहा होगा, पर मुझे भी वो ताकत दे रहा होगा कि उस बात को हम सह सके। ஒன்று பிரச்சனை முடிந்துவிடும், ஒன்று முடியாது. ஆனால் ரெண்டு பகுதியில் பார்த்தால் என்னை தேவன் பலப்படுத்தி சமாதான சந்தோஷத்தோட வைத்தார். तो हम देखते हैं एक जगह पर काम फौरन हो जाता है, दूसरी जगह पर हमें इंतजार करना पड़ता है, पर दोनों जगह में पाखरू हमारा मदद करता है। அதுதான் தேவனுடைய வல்லமை. यही है खुदा की ताकत। இதுதான் 10 பேதுருக்கு என்று பேசினது. यही बात है जो पतरस समझ के बात कर रहा है। அதான் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, மலையை பார்த்து பேசுகிறார். इसलिए वो अगले वचन में देखते हैं कि वो पहाड़ों को देखकर बात करता है। 13வது வசனை பார்த்தால் ஒரு மலையை பார்த்து அதை குறித்து பேசுகிறார். हम अगले वचन में जब पढ़ के देखते हैं तो पहाड़ को देखकर बात कर रहा है, மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்தை தள்ளுண்டு போ என்று சொன்னால் அது சொன்னபடி ஆகும் என்று. क्योंकि यीशु कहता है पहाड़ों को देखकर अगर तू कहेगा कि वहां से हट जा तो वो वाकई में हटेगा। ஆனால் சொல்லிவிட்ட கன்ஃபியூஷன் சொல்கிற வார்த்தை, पर इस बात को दोहराने के बाद शागिर्दों को देखकर இதயத்தோடு விசுவாசித்து சொன்னால் சொன்னபடி ஆகும். यीशु कहता है कि जब पूरे दिल से आप विश्वास के साथ बोलोगे तब होगा। எங்க இருதயத்தில், दिल से, இருதயத்தில் दिल से निकलना चाहिए, சிந்தனையில அல்ல. आपके सोच के साथ नहीं। இருதயத்தில் வல்லமை புறப்படும் போது आपके दिल में जब खुदा की ताकत नजर आए காரியம் அது செய்யும். என்ன செய்யும் என்றால், तो पहली बात क्या करेगी, குழப்பமான சூழ்நிலை மனநிலையை மாற்றும். मेरे जो सोच है ना हालातों को लेकर उस सोच को बदल देगा और मेरी कमजोरियों को मिटा देगा। பாருங்கள், ஒரு காரியம் அப்போஸ்தலர் 3வது அதிகாரம், हम एक्ट में पढ़ेंगे, एक्ट ஆக்ட் 3रा चैप्टर, 3வது அதிகாரம் 3-4. प्रेरितों की काम 3रा चैप्टर 3 और 4, 3 के 3 और 4। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंज पढ़ी। இந்த இடத்தில் பலன் ஆவியானவர் பெந்தெகோஸ்து நாள் பிறகு பரிசுத்த வல்லமை அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். हम देखते हैं पेंटेकोस्त के दिन उन्होंने पाखरू का मसा पाया था पहले, பெற்றுக்கொண்ட பிறகு 3000 பேர் ரட்சிக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். और उसके बाद 3000 लोगों ने खुदा के कलाम को स्वीकार किया। அந்த நாளில் அவர் தேவாலயத்துக்கு போகும்போது அங்கு ஒரு பிச்சை எடுக்கிற ஒரு மனிதனை இருப்பார். और अगला दिन पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भीख मांग रहा है। அங்க நிறைய பிச்சை எடுக்கிற மனிதர்கள் இருக்காங்க. वहाँ पर काफी लोग हैं ना बैठ के भीख मांगेंगे, பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். हर बंदा वहाँ पे बैठ के भीख मांग रहा है, சொல்கிறது ஒருவனை குறித்து அங்க பேசப்படுகிறது. पर कलाम में सिर्फ एक बंदे का जिक्र किया गया है। 40 காலமாக அவன் நடக்க முடியாதவனாக இருந்து பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். वो काफी सालों से चल नहीं पाता तो बैठ के भीख मांगता रहता है। அந்த இடத்துல பேதுரும் யோவானும் போகிறார். तो वहाँ पर पतरस और यूहन्ना जाते हैं। போகும்போது जब वो उसके पास से गुजरते हैं ஆவியில் ஏவப்பட்டு அங்க அந்த பிச்சைக்காரரை பார்க்கிறார். तो पतरस रूह में आकर देखता है उस भिखारी की तरफ। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இயேசு அந்த மரத்தை பார்த்ததை போல பேதுரு அந்த மரத்தை பார்த்தார். जैसे यीशु ने पेड़ की तरफ देखा था, पतरस उस भिखारी को देखता है। அவன் கேட்பது என்னவென்றால், என்னிடத்தில் பிச்சை கேட்கிறார், அந்த 4 பேர் காசை கேட்கிறார், ஒரு சாப்பாட்டுக்கான காசை கேட்கிறார். पर वो उस भिखारी जो है वो सिर्फ भीख मांग रहा है, उस दिन के लिए, कुछ चलाने के लिए, खाने पीने के लिए। ஆனால் அவர்கள் சொல்றது என்ன சொல்கிறார்கள்? पर पतरस और यूहन्ना क्या बोलते हैं, என்னிடத்தில் பொன்னும் பொருளும் இல்லை, हमारे पास ना चांदी है या सोना है, हमारे पास पैसे नहीं है, என்னிடத்தில் ஒண்ணு உண்டு. पर हमारे पास एक है, உன்னை வல்லமையாக சுகம் கொடுக்கிற வல்லமை எங்களுக்கு உண்டு. तुझे पूरी तरीके से ठीक करने वाला जो खुदा है, यीशु मसीह के नाम से तो उठकर चल। அவ்வளவுதான் சொன்னார். सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा வல்லமை புறப்பட்டது. और उसके अंदर खुदा की ताकत नजर आई। कहाँ से आई? இயேசு அன்று கற்றுக் கொடுத்தார்.
क्योंकि यीशु ने उन दिनों में उनको सिखाया था எதிராக இருக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்த்து பேசும்படியாக கற்றுக் जितने भी बड़ा हो उसके सामने खड़ा होकर बात करने की ताकत यीशु ने समझाई। முன்பாக இருக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்த்து பேசும்படியாக आगे जो भी हाल है उनके सामने खड़ा होकर बात करने के முன்பாக लिए, இருக்கிற பிரச்சனைகளை குறித்து பேசும்படியாக मेरे सामने जो भी खिलाफ हो उनके लिए बात करने के लिए। முன்பாக இருக்கிற சுகவீனங்களை குறித்து பேசும் अगर मैं कमजोर हूँ, मैं शारीरिक तौर पर, तब भी कैसे बात करना है। ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் சொல்கிற காரியம் पाखरू कहता है, இன்று உலக சபையானது ஊழிய காரியங்களையும் வல்லமை காரியங்களையும் தேடிக்கொண்டு ஓடிப்போய் கொண்டிருக்கிறது. हम देखते हैं कि दूसरे कलीसिया में लोग खादिमों के पास, बड़े बड़े नबियों के पास भागते हैं, पर உங்களுக்குள்ள அந்த வல்லமை இருக்கு. पाखरू कहता है वो ताकत खुद आपके अंदर मौजूद है। வல்லமையான ஊழியக்காரர்கள் அதே வல்லமையான இயேசு தான் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார். उसी बड़े खादिम के पास जो पाखरू है, वही पाखरू आपके अंदर बसा हुआ है, அதே வல்லமையான ஆவியானவர் தான் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார். वही पाखरू आपके दिल में बसा हुआ है, அபிஷேகம் தான் உங்களிடத்தில் और वही मस्सा हमारे पास भी है। பேதுருவை 120 பேர் அந்த மேல் மாடியில் இருக்கும்போது அவர்கள் வல்லமை இழந்தவர்களாக இருந்தார். वो 120 लोग जो पतरस के साथ बंद कमरे में थे, वही मसा हमारे बीच में भी है। கொண்டு மேல் மாடியில் இருந்தார். वो डर के मारे बैठे हुए थे कमरे के अंदर, இது தெரியும். क्योंकि वो जानते हैं यीशु दोबारा जिंदा हुआ है இயேசு பரலோகம் போனது தெரியும். और यीशु ऊपर जाने वाला है, वो भी जानते हैं, பலப்படுத்தினது தெரியும். और पाखरू आएगा ये भी जानते हैं। இருந்ததால பயந்து கொண்டு மேலே ஓட்ட सब कुछ जानने के बावजूद डर डर के बैठे थे कमरे के अंदर। நமக்கு இயேசுவை தெரியும். आज हम यीशु को जानते हैं, பலத்தை தெரியும். यीशु की ताकत को जानते हैं, और पाखरू के मस्सा को भी समझते हैं, காத்து கொண்டிருக்கிறோம். फिर भी हम भी डर के साथ बैठे हैं। அவர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் போல நாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். जैसे उन दिनों में वो इंतजार में थे, हम भी हैं, எவ்வளவு நன்றி இறங்கி சொன்ன வார்த்தை. पर उन दिनों में जैसे यीशु ने कहा था, 120 மேல் இறங்கின வார்த்தை. जैसे वही कलाम जो 120 के लोगों के ऊपर आया, और हमारे बीच में भी वही आज उतर आएगा। பேதுரு சொன்னார். उन दिनों में पतरस ने कहा, நீங்கள் ஏன் என்னை பார்த்து பயப்படுகிறீர்கள்? क्यों आप मुझे देखकर डर रहे हो? மாம்சமான யாவை மேலும் என் ஆவியை விட்டு சொல்லப்பட்ட क्योंकि अंतिम दिनों में सारे इंसान के ऊपर मैं मेरे रूह को उंडेल दूंगा। பலன் அடையும் போது जब आपको ताकत मिलेगी வரும்போது तो आपके अंदर वाकई में ताकत आएगी, பலப்படுத்தும் போது तो दिल में पाखरू आपको और ताकत देगा। இருக்கிற எல்லா பேதுரு கோட்டைகளை உடைக்கப்படும்படியாக जो भी आपके सामने हाल होगा, सब खुद से तोड़ के निकल जाएगा, எரிகோவின் கோட்டைகள் क्योंकि वो सब जरीको के दीवार की तरह है। இருக்கிற ஊழியத்துக்கு வாழ்க்கை தடையாக கோட்டைகளை கர்த்தர் हमारे सामने जो भी रुकावट है, हर रुकावट को वो तोड़ देगा। அதுக்கு ஆவியானவர் சொல்றார் உங்கள் இருதயத்தை நீங்க பலப்படுத்துங்க. इसलिए पाखरू सिर्फ ये कहता है कि दिल में आप ताकत रखना सीखें, எல்லா காரியங்களும் விசுவாசத்தை பலப்படுத்துங்க. दिल में विश्वास में आप आगे बढ़ें, தாவீது ராஜா செய்த காரியங்களை போலதான் जैसे दाऊद राजा ने उन दिनों में किया था। அதிகாலையில் எழுந்து தியானித்தார். सुबह सुबह उठकर वचन पर ध्यान करना है, ஸ்தோத்திர பலியை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். सुबह उठ के खुदा की प्रस्तिश नहीं करना, சும்மா பேருக்கு துதித்து கொண்டு நான் ஜெபித்தேன்னு சொல்லி दुआ करके प्रस्तिश करके मैंने किया है, ये नहीं है। பேசுகிற இயேசுவே நீ எனக்கு பேசும் ஆண்டவர். पर वो उठ के बोलता है कि खुदा तू मुझसे बात कर, मुझे ये मन्ना दे, இன்று நான் வாழற போஷிக்கிற உணவை தாரும். आज मैं क्या करूं तू बता। நான் ஆவியிலும் சரீரத்திலும் பலப்படும்படியாக பலன் मैं रूह और शरीर में, मेरे लिए ताकत मुझे मिलना चाहिए, என்னோட இருக்கிறேன். क्योंकि तू मेरे साथ है, என்னை வழிநடத்தி கொண்டு तू मुझे चलाएगा। நான் இந்த நாளில் எந்த பிரச்சனையும் உமக்கு முன்பாக எல்லாம் जो भी आज मुझे जो भी तकलीफों का सामना करना है, तू मुझे ताकत दे। उसका विश्वास था खुदा के साथ, விசுவாசம் யாரோட கடந்து கொண்டிருக்கிறது? और हमारे विश्वास किस पर है? விசுவாசம் பேப்பர்களோடு இருக்கிறதா? क्या हमारा विश्वास हमारे पास्टरों के ऊपर है, பேப்பர்களோடு இருக்கிறதா? या क्या हमारे परिवार पर है, நம்ம சார்ந்தவர்களோடு இருக்கிறதா? या हमारे दूसरे फ्रेंड्स के साथ है, என்னை நம்பிக்கொண்டிருக்கிற या क्या खुद पर भरोसा रखते हैं? இயேசு சொல்றாரு இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவன் यीशु कहता है सिर्फ जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, வல்லமை பெறப்படும். उनके अंदर से मेरी ताकत नजर आएगी, அவர் ஆவியானவர் क्योंकि उनके अंदर पाखरू बसा हुआ है, और मुझे जो चलाता है वो पाखरू है, मुझे वो ताकत देता है அவர் செய்ய வல்லவராய் और वो कर सकता है। நமக்கு அந்த தைரியம் வர வேண்டும் என்று अगर आपके अंदर वही ताकत है நாம் தியானிக்கிறவர்களாக மாறும். तो हम वचन पर ध्यान करने वाले बनेंगे। நிறைய பேருக்குள்ள காரியங்கள் இச்சையிலிருந்து நான் முடியவில்லை. இச்சைகள் यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनकी आंखों की जो भी ख्वाहिश है वो पूरा करना चाहते हैं, கண்களின் இச்சை आंखों की अभिलाषा, இது பலகீனம். और अपने जिस्मानी तौर पर कमजोरी या गुस्सा, भैर रखना, आपके अंदर जो भी कमी है, இதை அதாகி கொண்டிருக்கும்போது நாம் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். और जब ऐसी चीज आपके सामने आ जाता है तो आप सवाल करते रहते हो, ஏன் என்னால் முடியவில்லை? क्यों मुझसे नहीं हो रहा है? பசுத்தாவே என்னோட இருக்கிறாரா? पाखरू मेरे साथ है, என்னோட இருக்கிறாரா? क्या यीशु मेरे साथ है? நாம் கேள்வி கொண்டிருக்கிறோம். हम सवाल करने वाले बैठे हैं यहाँ पर, உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏற்கனவே சிலுவையில் மத்திய ஜெயம் கொடுத்து पर விட்டார். यीशु कहता है कि मैंने आपके लिए सब कुछ क्रूस पर कर दिया है। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, நீங்கள் கொரோனாவுக்கு வந்து பெரிய வியாதி வந்துடுச்சு.
हम देखते हैं कि ओके मान लो एक कोरोना जैसा एक बीमारी आ गई டாக்டர் மெடிசன் கொடுத்துட்டாரு. और उनके आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई அதை मिली है, வைத்துக் கொண்டு இருந்திருந்தால் அது குணமாகாது. उस दवाई को लेकर हाथ में रखोगे तो आप ठीक नहीं होगे, அதை எடுத்து உட்கொண்டால் தான் அது செயல். उस दवाई को लेना है तभी आप ठीक हो सकते हो। நாமெல்லாம் ரொம்ப நல்லவர்கள். हम सब अच्छे हैं, நாம் வியாதியை வைத்துக் கொண்டு हम सब बीमारी को रखते हैं மருந்தை வைத்துக் கொண்டு और जो हमें दवाई मिलती है उसको दूर रखते हैं ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். और दुआ करते हैं। இயேசு சொல்கிறார், यीशु कहता है, பாருங்க 1 பேதுரு 4வது அதிகாரம். पहला पत्रस उसका 4था चैप्टर, पहला நாம் पत्रस இந்த 4, நாளில் இந்த நாளில் இந்த காரியத்தை செயல்படுத்த போகிறோம். आज हम ये करेंगे। இந்த வாரம் நீங்க செயல்படுத்துகிறீர்களா? इस हफ्ते में अगर आप कर सकते हो, செயல்படுத்துகிறீர்களா? अगर आप वाकई में करोगे, நான் விசுவாசிக்கிறேன். मैं ईमान रखता हूँ, ஆவியானவர் வல்லமையினால் உங்களோட பேசுகிறேன். मेरे अंदर जो रूह का ताकत है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। வசனங்களை தியானிக்க इन वचनों का अगर आप दिन भर दिन ध्यान करोगे, தியானிப்பது நிச்சயம். आपको और ताकत मिलेगा और आप தேவனுடைய வார்த்தை उठोगे, வல்லமையானது. क्योंकि खुदा के कलाम में ताकत है। 1 பேதுரு 1:2. पहला पत्रस 1:2. 1 பேதுரு 4வது அதிகாரம் 1:2. उसका 1 और 2, पहला पत्रस 4 1 और 2, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வசனம். ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाम है, குறிப்பாக யார் பலகீனமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுற காரியம். खास करके जो कमजोर हैं उनके लिए है। வாசிப்போம் 1:2. पहला पत्रस 4 1 और 2। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वह पाप से छूट गया है, ताकि भविष्य में अपना श्रेष्ठ शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। आमेन, ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய இயேசுவானவர் நமக்காக மாமிசத்திலே பாடுபட்டார். यीशु हमारे लिए एक इंसान के रूप में शरीर में उसने दुख उठाया है, நமக்காக மாமிசத்தில் பாடுபட்டார். हमारे लिए शारीरिक तौर पर उसने दुख उठाया है மனுஷனுடைய இச்சைகள் முடி பிழைக்காமல் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பிழைப்பதற்காக और பாடுபட்டார். मनुष्यों के अभिलाषों के अनुसार नहीं पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। சதவீதம் மாமிசத்தில் இருந்தார். वो 100% वो इंसान था। அங்க இருக்கிற பாவமான பெண்கள் இயேசுவிடத்தில் வரும்போது जैसे वो जब स्त्रियां आई थी यीशु के पास, சூழ்நிலை தவறான பெண்கள் இயேசுவிடத்தில் வரும்போது वो अच्छे औरतें तो नहीं थी, பாவிகள் இயேசுவிடத்தில் வரும்போது गुनहगार थे जो यीशु के पास आए थे, மனிதர்கள் இயேசுவிடத்தில் வரும்போது या बहुत जैसे बुरे आदमी जब यीशु के पास आए थे, சூழ்நிலை இருக்கும். उसके हालात को आप सोच के देखें। ஆனால் அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் இயேசு ஜெயம் கொண்டார். पर उन सब हालातों में यीशु ने जीत हासिल की है, ஜெயம் கொண்டது. क्योंकि उसके अंदर जो खुदा ने ताकत दी, உண்மையான இயேசு தான் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இருக்கிறார். वही ताकत है जो यीशु की ताकत है हमारे अंदर मौजूद है। இயேசுவை தான் நாம் இருதயத்தில் வைத்து நாம் தியானிக்கும் போது தேவ வல்லமை புறப்படும். और इसी यीशु के कलाम को जब हम पूरे तरीके से दिल से पढ़ेंगे तो हमारे अंदर से वो कलाम जाहिर होगा। இயேசு நாமத்தில் சுகம் என்று और போது ये சுகம் உண்டாகுது. यीशु मसीह के नाम से तू चंगा हो गया अगर कहे तो होगा। அதே வசனத்தை எனக்குள் வைத்து எனக்கு பலம் வேண்டும், என் மாமிசத்தை பலம் அடைய வேண்டும் என்றால் இயேசுவானவர் நம்முடைய பலவீனத்தை பலப்பட வல்லவராய். उसी कलाम को इस्तेमाल करके खुद के लिए अगर आप दुआ करोगे कि यीशु मसीह के नाम से मैं ठीक हो गया हूँ तो आप ठीक हो जाओगे। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? कितने लोग विश्वास करते हैं? ஒரு 5 நிமிடம் ஜெபிக்க போறோம். हम 5 मिनट के लिए दुआ करेंगे, இயேசு இயேசு போக பலகீனம் போகும்போது காற்று இருக்கிறது. क्योंकि हम देखते हैं यीशु जब शागिर्दों के साथ था तो एक हल्की सी हवा थी இயற்கை இருக்கிறது. और उनके खिलाफ बारिश और तूफान आई, ஆனால் இயேசு ஒரு வார்த்தை கதறினார். पर यीशु ने सिर्फ एक लफ्ज कहा சத்துரு எதிர்த்து நின்றார். और इब्लीस उसके सामने आया வரும்போது இயேசு எதிர்த்து நின்றார். और वो उसने यीशु का सामना किया இயேசு அதை மேற்கொண்டார். और यीशु ने अपने कलाम के साथ उसका सामना किया। உங்களிடத்தில் எங்களிடத்தில் वही यीशु हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद है। நாம் ஒருமனப்பட போகிறோம். जब हम रूह में एक होंगे, 2 பேருக்கு 3 பேருக்கு ஒருமனப்பட இயேசு நமக்கு जहाँ 2 या 3 रूह में एक होते हैं वहीं पे यीशु आ जाता है, क्योंकि हमारे बीच में पाक रूह है और यीशु ने अपने पाक लहू हमारे लिए बहाया है, वो हमारे बीच में है और हम यीशु के लिए ज़िंदगी जीने का फैसला लेंगे। पर हम डरते हैं, जब हम आराधना करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम दूतों के साथ कर रहे हैं और हम खुदा के महिमा में यीशु कहता है मुझ पर जो विश्वास रखता है अगर उसकी मौत हुई तब भी उसकी अंत नहीं है, और जितने भी लोग जिंदा हैं उनकी कभी मौत नहीं होगी। उसकी अर्थ ये है कि आप खुदा की महिमा में दाखिल हो जाओगे।
தேவசாய हम खुदा जैसे बन जाएंगे, இயேசு மெசாயா மாறப்போகிறார் यीशु जैसे बन जाएंगे। सिर्फ एक ही काम है, சிலுவையில் மாறிவிட்டார் यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया, उसके लहू से मैं साफ हो गया हूँ। दिल ही दिल में होता है, मैं अपने आप को सौंपता हूँ और मेरे अंदर जो विश्वासी की कमी है उसको तो निकाल दे और मेरी कमजोरियों को तो मिटा दे और मेरे अंदर जो तू नहीं चाहता है ऐसे चीज़ों को तो निकाल दे। मेरे पास जो धन दौलत है सब कुछ तेरी वजह से है। उन चीज़ों को मैं अपने पैरों के नीचे में रखता हूँ, मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मैं अपने आप को सौंपता हूँ। तेरे वचन के साथ तू मुझे भर दे, क्योंकि तू एक शारीरिक तौर पर मेरे लिए तूने अपनी जान दी और तूने दुख उठाया है मेरे लिए और मेरे लिए तूने खोड़े खाए हैं और तुझे इतना मारा गया मेरे लिए, क्योंकि तू चाहता था कि मैं पाक बनूं और मैं विश्वास के साथ इकरार करता हूँ कि मैं पाक बनना चाहता हूँ। हम उठकर खड़ा होकर दुआ करेंगे। जैसे यीशु ने उस पेड़ को देखकर बात की, हमारे सामने जो भी हालात है जो हमारे खिलाफ है उन चीज़ों को जैसे खुदा ने पेड़ से बात की वैसे हम बात करेंगे। जैसे यीशु ने कहा आगे से वो फल नहीं देगा, वो ऐसा ही आपको बात करना है। पर यीशु कहता है कि तुझे बात नहीं करना चाहिए, मैं बात करूंगा। आजकल हमारे बीच में जो चाहे प्रॉब्लम्स हो सकती है, शायद आपके परिवार में हो या आपकी पत्नी हो या पैसों की प्रॉब्लम हो, जो भी आपके सामने मुसीबत बनकर खड़ी है, शायद आपकी कमजोरी है, शायद मेरी कमी है, जो भी हो सकता है, इन चीज़ों पर जीत पाने के लिए खुदा ने हमें ताकत दी। हम यीशु के लिए रचाए गए। यीशु कहता है कि आपको मेरे जैसे बनना है, क्योंकि हम उसके रूप में रचाए गए और हम उसमें बसे हुए हैं और यीशु हमारे अंदर है। हम हर वक्त उसकी प्रस्तुति करेंगे और उसकी महिमा हमारे सामने हो। यीशु कहता है जैसे पिता परमेश्वर और मैं एक हूँ, वैसे आपको भी एक रहना चाहिए। तो अगर उस तौर पर आप उस बात को समझें तो सारी सृष्टि भी हमारे लिए ही रचाया गया है। हमारे सामने रुकावटों को लेके आने के लिए ना इन रचाए गए सृष्टियों की भी अधिकार है, ना इब्लिस की भी अधिकार है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु हमारे बीच में है और यीशु की ताकत हमारे बीच में है। अगर 12 साल से वो औरत जब बीमार थी, सिर्फ यीशु के वस्त्र को छूने से वो ठीक हो गई, तो आज आपके और मेरे बीच में यीशु खुद मौजूद है। हालेलुया। इतनी महिमा से भरा हुआ खुदा हमारे बीच में है। वो वफादार है, वो राष्ट्रबाज है और वो हमें ताकत दे सकता है और अब देने के लिए वो एक्चुअली इंतजार कर रहा है। वो कर सकता है आपके लिए। वो जो भी करता है पूरा करके छोड़ता है। हालेलुया। रूम में एक होकर हम दुआ करेंगे। आज आपकी जो भी तकलीफ है, जो भी मुसीबत रुकावट है, उसको आप खुदा के अधिकार के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप दुआ करके तोड़ने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने एक ही लफ्ज कहा, सिर्फ एक ही लफ्ज उसने आंधी और तूफान को देखकर कहा और पेड़ को देखकर भी उसने पूरे हक के साथ कहा, उसने पूरे बल के साथ और उसने एक अथॉरिटी के साथ बात की। हम भी ऐसे ही बात करेंगे क्योंकि पाकरू करने वाला है, वही ताकत आपके अंदर है, वही यीशु हमारे बीच में बात कर रहा है। हमारे सामने जो भी रुकावट हो,
जितने भी बुरी हाल हो, तू मेरे परिवार को बदल दे। मेरे हालों को मैं बदल नहीं सकता, मैं कमजोरियों को मिटा नहीं पाया, मैं आने वाले कल को लेकर मैं तकलीफ उठाता हूँ। जो भी है यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को खुदा के ताकत के साथ तोड़ने की ताकत मिले आपको। मूसा के लिए उस समुद्र को दो हिस्सों में तोड़ने वाला खुदा हमारे बीच में है। उसने सिर्फ समुद्र को दो भागा में नहीं, बट उसको रास्ता दिखाया। और यीशु ने क्रूस पर सिर्फ अपनी जान नहीं दी, बट मौत पर फतह पाकर दिखाया है। और वही जीत उसने हमें भी दी। विश्वास के साथ अगर इकरार करें, अगर विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे अंदर बसा हुआ है, अभी और इसी वक्त आप उस महिमा को देखोगे। उन दिनों में बंद कमरे में 120 लोगों के ऊपर जो मसा खुदा ने उंडेला है, आज हमारे बीच में उंडेलने के लिए हाजिर है। आपको विश्वास रखना चाहिए। हम अपने आप को साफ करें, सौंप कर हम साफ करें। खुदा के सामने हम अपने आप को सौंपें। मैं अपने आप को सौंपता हूँ, मेरे कमजोरियों को तो निकाल दे। जितने भी लोग चाहते हैं कि आपकी कमजोरियों से आपको छुटकारा मिले, आप अपने मुंह खोलकर पूरे दिल से आप मांगे, और खुदा करने के लिए हाजिर है। पूरे अधिकार के साथ आप मांगे, अपने मुंह खोलकर बुलंद आवाज में आप खुदा से मांगे। आपके हर रुकावटों को तोड़ने की ताकत को मांगे, पूरे अधिकार के साथ काम करने की ताकत मांगे, क्योंकि यीशु कर सकता है। क्योंकि दूसरों के जो बंधनों को तोड़ना है, वो ताकत से वो भर सकता है, कलीसिया को भर सकता है। हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तू ताकत से भरेगा, क्योंकि तू कर सकता है खुदाया। क्योंकि मेरी कमजोरी आज के बाद कुछ भी नहीं है, तू कर सकता है। अब्बा, अभी और इसी वक्त जितने भी लोग मांगे उन सबको खुदा देने वाला है, क्योंकि उसकी ताकत से, क्योंकि वो कर सकता है। और वही ताकत के साथ, वही अधिकार के साथ आप मांगते रहें। वो कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वो तोड़ सकता है आपके बंधनों को। यस लॉर्ड, अभी और इसी वक्त हर एक के बंधनों को तोड़ रहा है, अभी और इसी वक्त हर एक के काम को पूरा कर रहा है। जो भी मांग रहे हैं उनको मिल रहा है। ओह यस लॉर्ड, यस जीसस, मैं अपने आप को सौंपता हूँ अब्बा, पूरे दिल से सौंप रहा हूँ खुदाया। और तू ऐसा कर जैसा तू चाहता है अब्बा। मुझे वो ताकत दे तू मेरे सामने, जो भी है खुदाया, तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से, जो भी हम मांगे यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के अधिकार के साथ हम कर पाए खुदाया। जो भी रुकावट है अब्बा, तू करने की ताकत से भर दे अब्बा। मुंह खोल के बुलंद आवाज में आप मांगते रहें, क्योंकि यीशु ने आपको अधिकार दी है। और आपको अभी और इसी वक्त आपको जवाब मिलेगा। जहां भी आप जाओगे खुदा की महिमा नजर आएगी। ओ अपने आप को सौंपे, अपने आप को सौंपे, सौंप कर जो मांगना है आप खुदा से मांगे। ओ यस लॉर्ड, तू कर सकता है अब्बा, तू करने वाला खुदा है, तू करने वाला खुदा है। तू मुझे वो चलना सिखा, मुझे वो उठकर चलना सिखा, मुझे वो नया रूह का मसा से भर दे, वो नया रूह के मसा से भर दे, मुझे चलना सिखा। यस लॉर्ड, एक नया रूह का मसा खुदाया, रूह में एक होकर जब भी मांगा गया है अब्बा, तू हमें भर दे लॉर्ड। यस लॉर्ड, जीसस कर सकता है अब्बा। ओ सबसे ऊंचा नाम, यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम, उसके नाम में अधिकार है, उसके नाम में ताकत है। वो करने वाला खुदा है, वो ताकत से भरता है, हम सबको चलाता है। ओ यस लॉर्ड, एक नई रूहानी ताकत अब्बा, एक नई रूहानी ताकत अब्बा। ओ यस जीसस, तू हमें इस्तेमाल कर,
तू मुझे इस्तेमाल कर जैसा तू चाहता है। और यस लॉर्ड, एक नई रूहानी ताकत से, ओ यस जीसस, हमारे दिलों को तू साफ कर, हमारे सोचों को तू साफ कर। ओ हालेलुया, यस लॉर्ड, ताकि हम तेरे जैसे बने अब्बा, हमारी मर्जी से नहीं पर तेरी मर्जी अब्बा, तेरी मर्जी खुदाया हमारी जिंदगी में पूरी हो अब्बा। ओ यस जीसस, ओ हालेलुया, यस जीसस, ओ तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी अब्बा, तेरी ताकत से भर दे अब्बा। ओ यस लॉर्ड, जैसे उन दिनों में उस बंद कमरे में 120 लोगों के बीच तू उतर आया था अब्बा, और एक बार हमारे बीच में, यस लॉर्ड, यस फादर गॉड, एक रूहानी ताकत, एक नई रूहानी ताकत, और एक बार अब्बा, यस लॉर्ड, यस फादर गॉड, यस जीसस, हालेलुया। पूरे अधिकार के साथ बात करना सिखा, पूरे अधिकार के साथ बात करना सिखा अब्बा, और ऐसे बात करें जैसे यीशु ने पेड़ के सामने बात की, जैसे पतरस ने उस भिखारी के सामने बात की। और लॉर्ड, कैसा बात करना है, कहाँ पे बात करना है, तू सिखा, चलना सिखा, उठना सिखा अब्बा, वैसे बात करे जैसा तू चाहता है, वैसा काम करे जैसा तू चाहता है। ओ लॉर्ड, अपने आप को सौंपते हैं अब्बा, हम अपने आप को सौंपते हैं खुदाया। ओ यस जीसस, यस लॉर्ड, पूरे विश्वास के साथ अब विश्वास रखें। जैसे अब देखते हैं जब पतरस जेल में था, ओ हालेलुया, पतरस जेल में था और औरतें बैठ के धुआं कर रही हैं उसके लिए, उनकी दुआ ने जेल में बैठा हुआ पतरस के जंजीरों को तोड़ दिया था। ओ हालेलुया, दुआ कर कर अगर जंजीर तोड़ सकता है, अगर ताकत भरी एक दुआ जंजीरों को तोड़ सकता है, तो हमारे दुआ हर जरीको के दीवारों को तोड़ सकती है। पूरे ताकत के साथ दुआ करें, पूरे विश्वास के साथ दुआ करना है। यीशु कर सकता है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखकर कहें, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखकर कहें, उसने सब कुछ मेरे लिए कर दिया है, उसने कर दिया है, और मैं उसको आज मैं पाता हूँ। यस लॉर्ड, ओ यीशु मसीह के नाम से पूरे अधिकार के साथ अब्बा, यस लॉर्ड, हालेलुया, यस जीसस, ओ हालेलुया, यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, तू कर सकता है अब्बा। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में आप और आगे बढ़ें आज के बाद। पहला पतरस का जो 4था चैप्टर हमने पहले 4 वचन पढ़े हैं, उन वचनों पर आप ध्यान करें। हर वक्त आप खुदा के साथ मुमकिन है तो बात करें, अगर मुमकिन है तो आप उन वचनों को आप पूरी तरीके से बाय हार्ट कर लें। जितना ज्यादा आप उस बात को ध्यान करोगे, जो भी आपके सामने तकलीफ आ जाए, तब भी आप इन वचनों को आगे लेके आना है। अगर कुछ काम है जो अधूरा है, बोलना है कि नहीं, खुदा पूरा करेगा, और खुदा कर सकता है, और खुदा आपको शांति और तसल्ली देगा, और वो शांति जो है यीशु की तरफ से होगा। तो आज हम देखते हैं कि खुदा हमारी जवाब दे रहा है। हालेलुया। अगले हफ्ते हम देखते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन है। आज के बाद अब हर रोज कम से कम आधा घंटा उसके हुजूरी में बैठकर बात करें। इसी हफ्ते में खुदा आपको हर बात को बताएगा, और खुदा के हुजूरी में बैठकर दुआ करने वाले बनाएगा हमें। हमारा प्यारा पिता परमेश्वर, इस विश्वास की नई ताकत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि तेरे लिए हम ऊपर उठकर हम खड़ा हो जाएं। हम कुछ भी नहीं जानते हैं,
हम कुछ भी नहीं जानते, तू तेरी अक्ल से हमें भर दे अब्बा, और हमें बल दे, और तेरी मर्जी के अनुसार हमें चला। हम अपने आप को छोटा करके तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भी भाई बहन आ जाए हैं सबको छुटकारा देने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं अब्बा। अभी और इसी वक्त सबको वो जवाब नजर आ रही है, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले दिनों में आंखों से उन जवाबों को देखेंगे। हर वक्त हमें जय देने वाला यीशु के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, अपने आप को सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 23 आयत में से पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। Our beloved Father, submit the Holy Communion to your hand. The same night in which he had betrayed took bread, and he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for me. This do is remember of me. After the same manner, also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do eat as of it, remember of me. यीशु ने कहा, तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। ऑलरेडी है ना, दुआ दे लेकिन खड़ा होना पड़ता है। ये
दिया करो, दूंगा हर खुशी, होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी तुम दिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में जे किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। Our beloved Father, 2000 years before, you made a New Testament for us, Father. Father, today we remember that moment when your blood and your body purified us. Father, today we receive your word of God, and today also declare the video word of power. Father, give me the Holy Spirit's strength to us when we have the blood and flesh in our body. Strengthen us. Submit everything in the name of Jesus. Amen.